Dear students, today I am going to tell you a story, and the topic of the story is a hole in the fence. So, I will be telling you the story in English first, and then I will translate this story into Urdu for you. So, let us start the story. Once upon a time, there was a small boy. He lived in a small village with his parents. The boy was quick to anger and taunt others with his words. His bad words hurt the others. He scolded everyone. Due to his bad temper, everyone started avoiding him. His parents advised him many times to control his anger and develop kindness. Unfortunately, all their attempts failed. Finally, the boy's father came up with an idea. The father gave him a bag of nails and asked him to hammer one nail into the fence every time he got angry. The little boy found it interesting and accepted the task. Every time he lost his temper, he ran to the fence and hammered a nail. His anger drove him to hammer nails to the fence almost 30 times the first day. As the days passed, the number of the nails hammered on the fence started reducing. The little boy found it difficult to hammer the nails and decided to control his temper. Gradually, the number of nails hammered to the fence reduced drastically, and the day arrived when no nail was hammered to the fence. The boy did not lose his temper that whole day, and for the next several days, he did not lose his temper. So, he didn't need to hammer any nail to the fence. Now, his father told him to remove the nails each time he controlled his anger. Several days passed, and the boy was able to remove most of the nails from the fence. However, there remained few nails that could not be pulled out. The boy told his father about it. Father appreciated that and asked the boy, pointing to the hole, "What do you see there?" The boy replied, "A hole in the fence." "Now, tell me, do you know what does your anger do?" asked the father. The boy gave a confused look. So, the father continued, "The nails were your bad temper, and they were hammered on people. You can remove the nails, but the holes in the fence remain. The fence will never look the same. It has scars all over. Some nails cannot even be pulled out. You can stab a man with a knife and say sorry later, but the wound will remain there forever. Your bad temper and bad words were like that. Words are more painful than physical abuse. Use words for good purposes. Use words to grow relationships. Use words to show love and kindness in your heart." The boy realized his mistake and did not repeat the mistakes. Moral: unkind words cause lasting damage. Another moral: words are more painful than physical abuse. Now, dear students, I am going to translate this story into Urdu for you. A hole in the fence. होल का मतलब होता है सुराख, और फेंस का लफ्ज़ी मतलब होता है बाड़, यानी जो बाड़ लगाए जाते हैं। यहाँ पे मुराद आप दीवार समझ लें।
वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर वाज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा सा लड़का था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हिज पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। द बॉय वाज क्विक टू एंगर, वो लड़का गुस्से का बहुत तेज था। एंड टोंट अदर्स विद हिज वर्ड्स, और दूसरों पर अपने अल्फाज के ज़रिए तंज करता था। टोंट का मतलब है तंज करना, एंगर का मतलब गुस्सा। हिज बैड वर्ड्स हर्ट दी अदर्स, उसके बुरे अल्फाज से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती थी। हर्ट का मतलब तकलीफ़ पहुंचना। ही स्कोल्डेड एवरीवन, वो हर किसी को डांटता था, डांट डपट करता था। स्कोल्डेड का मतलब डांट डपट करना। ड्यू टू हिज बैड टेम्पर, अपने बुरे मजाज के साथ, बैड टेम्पर बुरे मजाज के साथ, एवरीवन स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम, यानी उसके बुरे मजाज की वजह से हर एक ने उससे कतराना शुरू कर दिया। अवॉइडिंग का मतलब है कतराना, साइड पे निकल जाना। हिज पेरेंट्स एडवाइज्ड हिम मैनी टाइम्स टू कंट्रोल हिज एंगर एंड डेवलप काइंडनेस, उसके वालिदैन ने उससे बहुत दफ़ा ये नसीहत की कि अपने गुस्से को कंट्रोल करे और अच्छे जज्बात का इजहार करे। काइंडनेस का मतलब रहमदिली पैदा करे अपने दिल में। अनफॉर्चुनेटली ऑल देयर अटैम्प्ट्स फेल, बदकिस्मती से उनकी तमाम कोशिशें बेकार चली गईं। फाइनली द बॉयज़ फादर केम अप विद एन आइडिया, आखिरकार उसके वालिद को एक ख्याल आया, उसे एक तरकीब सूझी। द फादर गेव हिम अ बैग ऑफ नेल्स, उसके अब्बू ने, उसके वालिद ने उसे कीलों में, नेल्स का मतलब होता है कील और नेल्स का मतलब कीलों, कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया। एंड आस्क्ड हिम टू हैमर वन नेल इनटू द फेंस एवरी टाइम ही गॉट एंग्री, और उससे ये कहा कि जब भी उसे गुस्सा आए तो एक कील को हथौड़े के साथ दीवार में लगा दे, ठोंक दे। हैमर का मतलब होता है हथौड़े से ठोंक देना। द लिटिल बॉय फाउंड इट इंटरेस्टिंग, उस छोटे से लड़के को ये बात बड़ी दिलचस्प लगी। एंड एक्सेप्टेड द टास्क, और उसने ये काम कबूल कर लिए, ये बात कबूल कर ली। एवरी टाइम ही लॉस्ट हिज टेम्पर, जब भी वो अपना जब उसे गुस्सा आता, ही रैन टू द फेंस, वो भाग कर दीवार पे जाता। एंड हैमर्ड अ नेल, और वहाँ एक कील लगा देता। हिज एंगर ड्रोव हिम टू हैमर नेल्स टू द फेंस ऑलमोस्ट 30 टाइम्स द फर्स्ट डे, पहले दिन तकरीबन 30 मरतबा उसे भाग कर दीवार पर जाना पड़ा और वहाँ एक कील लगानी पड़ी। एज द डे पास, जून जून दिन गुजरते गए कि द नंबर ऑफ द नेल्स हैमर्ड ऑन द फेंस स्टार्टेड रिड्यूसिंग, तो दीवार पर लगाई गई कीलों की तादाद में कमी आती गई, वो कम होना शुरू, रिड्यूसिंग का मतलब कम होना शुरू हो गई। द लिटल बॉय फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू हैमर द नेल्स, उस छोटे से लड़के को अब ये मुश्किल नज़र आ रहा था कि वहाँ जाकर वो कील गाड़े। एंड डिसाइडेड टू कंट्रोल हिज टेम्पर, इसलिए उसने फ़ैसला किया कि अपने गुस्से पर या अपने मजाज पर वो कंट्रोल हासिल करे, क्योंकि कील लगाना, भाग कर जाना, कील लगाना वो मुझसे मुश्किल नज़र आ रहा था। इसलिए उसने फ़ैसला किया कि अपने मजाज पर कंट्रोल करूँगा, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूँगा। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, द नंबर ऑफ नेल्स हैमर टू द फेंस रिड्यूस ड्रेस्टिकली, दीवार पर लगाई गई कीलों की तादाद बड़ी तेज़ी से कम होती गई। ड्रेस्टिकली का मतलब है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत बड़ी तब्दीली। एंड द डे अराइव्ड, और वो दिन आ पहुंचा, व्हेन नो नेल वाज हैमर टू द फेंस, कि उस दिन कोई भी कील दीवार पर नहीं लगाएगी। द बॉय डिड नॉट लूज हिज टेम्पर दैट होल डे, उस दिन यानी तमाम दिन, उस पूरे दिन में उस लड़के को गुस्सा नहीं आया। एंड फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेज, और अगले कुछ दिनों के लिए, ही डिड नॉट लूज हिज टेम्पर, और उसने अपने मजाज पर काबू पा लिया, उसे गुस्सा नहीं आया, उसे अपने मजाज को उसने खो नहीं दिया। सो ही डिड नॉट नीड टू हैमर एनी नेल्स टू द फेंस, इसलिए उसे ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो जाकर दीवार पर कील गाड़े।
नाउ हिज फादर टोल्ड हिम टू रिमूव द नेल्स ईच टाइम ही कंट्रोल हिज एंगर। अब उसके अब्बा ने उससे कहा, उसके वालिद ने कहा कि जब भी उसको गुस्सा आए और उस पर काबू पा ले तो भाग कर जाए और वो तमाम कीलें एक एक करके निकालता जाए। Several days passed and the boy was able to remove most of the nail from the fence. काफ़ी दिन गुजर गए और लड़का इस काबिल हो गया कि ज़्यादातर कीलें दीवार में से निकाल ली गईं। However, ताहम there remained few nails that could not be pulled out. ताहम कुछ कीलें अब भी बाकी थी जो कि वापस नहीं निकाली जा सकी। The boy told his father about it. लड़के ने अपने वालिद से इसका जिक्र किया कि कुछ कीलें अब भी हैं। फादर अप्रिशिएटेड दैट। उसके अब्बू ने उसकी तारीफ़ की एंड आस्क्ड द बॉय पॉइंटिंग टू ए होल, और एक सुराख की तरफ इशारा करते हुए लड़के से पूछा, व्हाट डू यू सी देयर, आप इसमें क्या देखते हो इस सुराख में। द बॉय रिप्लाइड, उस लड़के ने कहा, अ होल इन द फेंस, दीवार में एक मैं सुराख देखता हूँ। नाउ टेल मी, डू यू नो व्हाट डज योर एंगर डू, अब मुझे बताओ क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा गुस्सा जो है वो क्या करता है। आस्क्ड द फादर, उसके अब्बू जी ने पूछा, उसके वालिद साहब ने पूछा। द बॉय गेव अ कन्फ्यूज लुक, तो लड़का हैरत से देखने लगा, वो परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया, उलझन में मुबतला हो गया, यानी उससे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। सो द फादर कंटिन्यूड, तो अब उस लड़के के वालिद ने अपनी बात जारी रखी। द नेल वर्स योर बैड टेम्पर, ये जो कीलें हैं ये आपका गुस्सा थी। एंड दे वर हैमर्ड ऑन पीपल, और ये लोगों पर ठोंकी गई थी, लगाई गई थी। यू कैन रिमूव द नेल्स, आप कीलों को हटा सकते हैं, बट द होल्स इन द फेंस रिमेन, कीलें तो आप हटा सकते हैं लेकिन वो जो सुराख हैं वो बाकी रह जाएंगे, वो नहीं मिट सकते, वो नहीं हट सकते। द फेंस विल नेवर लुक द सेम, ये जो दीवार है जिन पर कीलें गाड़ी गई थी फिर निकाल भी ली गई थी, लेकिन उनमें सुराख अब भी बाकी है, तो ये अब पहले की तरह नहीं नज़र आएगा। इट हैज़ स्कार्स ऑल ओवर, इसमें हर जगह निशान ही निशान। स्कार का मतलब होता है ज़ख़म का निशान, लेकिन यहाँ मुराद है निशान। इस दीवार पर अब हर जगह निशान पड़े हुए हैं। सम नेल्स कैन नॉट इवन बी पुल्ड आउट, और कुछ कीलें तो ऐसी थी जिनको निकाला ही नहीं जा सकता। यू कैन स्टैब अ मैन विद अ नाइफ, आप किसी इंसान को चाकू मार दो, चाकू घोंप दो। स्टैब का मतलब होता है घोंपना, नाइफ चाकू। एंड से सॉरी लेटर, और बाद में उससे बहुत माजरत कर लो, माफ़ी मांग लो। बट द वूंड विल रिमेन देयर फॉर एवर, लेकिन ज़ख़म वहाँ हमेशा रहेगा। वूंड का मतलब होता है ज़ख़म। योर बैड टेम्पर एंड बैड वर्ड्स वर लाइक दैट, आपका जो बुरा मजाज है और जो बुरे अल्फाज हैं वो बिल्कुल इस चाकू की तरह ही हैं। वर्ड्स आर मोर पेनफुल दैन फिज़िकल एब्यूज़, अल्फाज जो हैं वो जिस्मानी तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ दे होते हैं, अल्फाज ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं बनिस्बत जिस्मानी तकलीफ़ के। यूज़ वर्ड्स फॉर गुड पर्पसेस, अपने अल्फाज अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें। यूज़ वर्ड्स टू ग्रो रिलेशनशिप, अपने अल्फाज को रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो। यूज़ वर्ड टू शो लव एंड काइंडनेस इन योर हार्ट, अपने अल्फाज को अपने दिल में नरम दिली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करो। जब उसके बाप ने ये बात कही, द बॉय रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, लड़के ने अपनी गलतियां महसूस कर लीं। आई डिड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स, और दोबारा वो गलतियां कभी नहीं दोहराई। इसका मॉरल, अनकाइंड वर्ड्स कैन लास्टिंग डैमेज, ये जो नामेहरबान अल्फाज होते हैं, बुरे अल्फाज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा देर तक बाकी रहने वाला नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा इसका मॉरल है, वर्ड्स आर मोर पेनफुल दैन फिज़िकल एब्यूज़, अल्फाज ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं बनिस्बत जिस्मानी तकलीफ़ के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।